নমস্কার, আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি। আমি অরূপ চক্রবর্তী। দেখে নিন আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। 10 लाख नहीं मिल जाए ना तो हम लोग इसको बनवा देंगे। अरे हम बाबा दिन है आज कितना भर गया बाबा का मंदिर। अरे हम रोज सस्ता रहे सब लड़का रोज कर रहा है तो मालिक ये नाली का हम ही बनवाया। भैया रुकिएगा तो অন্য পার্টিতে শুনে এসেছি কাজগুলো বন্ধ নেই সেটা দাদা একবার প্রেশার দিই हाई मास আমরা লাগিয়ে দিলাম দেখা যাক কতটা কি করা যায় আপনারা চাইলে অনেক বাস আপনার আশীর্বাদ থাকলে আগেও করেছিলাম আর এখনও করি, কিন্তু কোনো আশার কোনো ফল পাওয়া যায় না। আমরা এর আগে যারা এমএলএ ছিল এসেছিল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো রকম কিছু কাজ করতে পারেনি। বর্তমানে আশাইটা শুধু আশাই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আশাটা কাজে হবে তবে না। এমএলএ না মেয়র? মেয়র, যিনি মেয়র জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, ইনি আগে এসেছিলেন এখানে, আমার এখানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 1 কোটি টাকা আপনার এখানে 1 কোটি টাকা শিব মন্দিরের কাজ হবে। যখন উনি আমি যখন গেলাম ওনার অফিসে, নিজে গেলাম, গিয়ে ওনাকে বললাম যে আপনি বলে এলেন কাজ করব, তো কাজটা করুন। বললাম আমরা হেরে গেছি, আমরা করব না। তখন লোকসভা ইলেকশানে হয়েছে, লোকসভা ইলেকশনের পরে আমি গিয়েছিলাম। বললো আপনি বললেন যে করব, বললো না আমরা হেরে গেছি, ওই একটা মার্কস লাইট দিয়েছি এই পর্যন্ত, আমরা কিছু করব না। আর অথচ পেপারে সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছিল 1 কোটি টাকার কাজ করব। ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞেস করে কি বাবা আপনাকে যে বললো 1 কোটি টাকার কাজ হবে, কই কিছু হলো? কিছুই না। একটা ইটা, 1 পিস ইট একটা দেখাই দিন যে কোনো নেবিয়ে করে গেছে। একটা বাথরুম পায়খানা যেটা কমন জিনিস মানুষের দরকার, সেটাও পর্যন্ত কেউ করেনি। আজকের এই বাবুল সুপ্রিয় এত দিনের এমপি আছে, একবার এসে মনে করেছে যে 2500 বছরের মন্দির আমার দেখার দরকার, আমার এলাকার মধ্যে পড়েছে, কেউ দেখেনি। সব নিজের ভোট নিয়েই ব্যস্ত আছে, আসে যায়, কিছু বলার নেই এর মধ্যে। আমি কোনো রাজনীতির মধ্যে যাব না। একটা এমপি এত প্রাচীন জিনিস, নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দরকার নেই, তৈরি করা আছে। শুধু একটু রাস্তা ভালো করে দেবে, একটু প্রচারে এনে দেবে, তাতেই কত মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়নি। দেখুন বেনারস গড়ে উঠেছে আজ বাবা বিশ্বনাথকে নিয়ে, বৈদ্যনাথ গড়ে উঠেছে বাবা শিবকে নিয়ে, তিরুপতি বলে সব জায়গা, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দেশ, প্রত্যেকটা তীর্থ গড়ে উঠেছে এক একটা মঠ মন্দির নিয়ে। আমাদের বরাবরে আছে কি এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির? এটাকে যদি সুন্দর করে জাগিয়ে তোলে তো মানুষের, কত মানুষের রুজি রোজগারের মধ্যে থেকে হয়ে যায়, জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, কত মানুষ কাজ পায়, সেই নিয়ে কেউ ভাবে না। আজকে তুমি আবার আসছেন, কি আশা আমি করছেন? শুনেছি, আমার কাছে কেউ বলেনি, আপনারাই বললেন যে আসছে। এই আপনারা বললেন আসতে, দেখি কি প্রতিশ্রুতি দেয়, কতটুকু রাখবে সেটাও আমি তো বলতে পারবো না আগে থেকে। আবার কি এই পুরনো কথা তুলে ধরবেন ওনার কাছে? দেখুন পুরনো কথা তুলে ধরা না ধরা সবাই জানে এই জিনিসটা, আমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সবাই আসে, ফিতা কাটে, চলে যায়। আপনি কি আশা রাখছেন? আমি কোনো আশাই নেই। এত বছরে যখন আশায় নিরাশা হয়ে আছে, আর আশা করবার কি আছে? যা মন্দিরে যা দেখছেন ভক্তরা মিলে গড়ে তুলেছে, এখানকার লোকাল মানুষ, তারাই যতটুকু পেরেছে করে এইটুকু করেছে নিজেরা। একটা যেটা বাথরুম পায়খানা সাধারণ কমন জিনিস, সেটুকু পর্যন্ত কেউ করবার মনে করেনি। এখানকার রাজ্য সরকারের প্রতি কিছু আশা রেখেছেন? না, আমি ওসবের কোনো সরকারের প্রতি কেন বলতে যাবো, গিয়ে ঝামেলায় জড়াতে যাবো, মাথা খারাপ হয়। আমি কাউকে কিছু বলবো না, আমার কাছে যেটা ঘটেছে আমি সেটা বললাম। শিব মন্দিরে জল জমলে গেলে আপনি দেখবেন জলের মধ্যে একটু বৃষ্টি হলে শিব জলের তলায় চলে যাচ্ছে, কারের কোনো কিছু না, শুধু আসে বলে করব চলে যায়, আর ফিরে আসে না। যে একবার বলে আর চলে যায় আর ফিরেও আসে না, যে কাজটা বলে এলাম ঠাকুরের সামনে মিথ্যা কথা বলে যাই কি করে? বাবা পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম হরেকৃষ্ণ বাবা, আমি এই মন্দিরের সেবায়িত। আমি সীতারাম বাবা, কাশী বাবা, এখন 3 নম্বরে আমি আছি। এই মন্দিরটা আলাদা, দুটো মন্দিরে গুলিয়ে দেবে না। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আলাদা, আর এটা সীতারাম বাবার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির, দুটো পার্ট আলাদা। ওর সেবায়িত আলাদা, এর সেবায়িত আলাদা। आसनसोल शहर को वंचित किया जा रहा है। आसनसोल शहर के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही है। आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर आया था और यहाँ के जो 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 यहाँ पर जिनके इसकी देखभाल करते हैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, उन्होंने बहुत सा काम यहाँ पर कहा था कि ये काम की ज़रूरत है। इमीडिएटली हम लोगों ने एक हाई मास लाइट यहाँ लगाया था और 1 करोड़ रुपए का एक DPR हम लोगों ने बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा था, और सही में ज़रूरत है। आप देखिए सही में ज़रूरत है इसकी। इस तरह केवल यही नहीं, पूरे आसनसोल में बहुत सा जगह का बहुत सा DPR बना के राज्य सरकार के पास भेजा गया। लेकिन मैं देखता था
कि कलकत्ता को जब सुंदर बनाने की बात आती है तो सब कुछ होता है, लेकिन आसनसोल शहर उल्टी बढ़ाकर इस इलाके में यदि कुछ काम करना हो तो कलकत्ता से पैसा देने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरा बात जब कोई नहीं सुना तो मैंने कहा इस कुर्सी पर बैठ के रहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने ये कुर्सी छोड़ दी। और आज भी आज करीब 6-8 महीना हो गया, अभी भी जो लोग नगर निगम में बैठे हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा कि आसनसोल के साथ आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। बहुत से लोग चिल्लाने लगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आसनसोल को वंचित नहीं किया जा रहा है, आसनसोल को बहुत सहयोग मिल रहा है सरकार का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आसनसोल को यदि राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है, यदि आपको पैसा मिल रहा है, तब 1 करोड़ रुपया जो मैंने सैंक्शन किया था उसका टेंडर कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका टेंडर कीजिए। मैं जानता हूँ आप टेंडर नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जनता ने डॉक्टर साहब को हमारा विधायक बनाकर यहाँ से भेजा है। केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी वो चिट्ठी कर रहे हैं जिससे कि एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको कुछ किया जाए, लेकिन मूल जिम्मेदारी यहाँ की राज्य सरकार की है। यहाँ ड्रेन जाम है, बड़ा ड्रेन बनाना पड़ेगा, वो क्या केंद्र सरकार आके यहाँ नाली ड्रेन पानी लाइट ये भी यदि केंद्र सरकार को आगे बनाना पड़े तो कॉर्पोरेशन किस लिए है, तो राज्य सरकार किस लिए है। लेकिन अब ये प्रश्न पूछेंगे तो बोले आप क्या किए। अरे भाई हम जब कुर्सी में थे तो ऐसा थोड़े है कि हम कोर्ट में वकालत करेंगे वहाँ से पैसा कमा के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो भी मेयर की कुर्सी में रहता है, सरकार जो पैसा देती है या लोग जो टैक्स देते हैं, इसी से काम करना पड़ता है। तो जब टैक्स तो हम लोगों ने लिया, आप कितना टैक्स लेंगे, लेकिन सरकार से जब पैसा मांगते गए तो उनको ये सब फालतू चीज लगा। पश्चिम बंगाल की सरकार को म्युनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट को उस समय जो मंत्री थे उनको ये सब काम फालतू लगता था, लेकिन ये सब काम फालतू नहीं है, ये जरूरी है। ये आज आकर आपको पता चल रहा है। 7 दिन की बारिश में क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा। हम लोग फिर डिमांड करते हैं कि आसनसोल शहर को वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है कलकत्ता के द्वारा, इसके खिलाफ सारे लोगों को, कुल्टी, जमुड़िया, रानीगंज, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, सारे लोगों को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी कि जब इतना रेवेन्यू यहाँ से जाता है, इतना यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, राज्य सरकार की बहुत से यूनिट है, यहाँ पर इतना रेवेन्यू आसनसोल से जाता है कलकत्ता को। आप आसनसोल से केवल पैसा लेंगे और आसनसोल को जब देने का समय आएगा तो आप कंजूसी करेंगे और बोलेंगे कि कुर्सी में रहना है तो चुपचाप रहो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर ये हिम्मत थी कि मैंने मेयर की कुर्सी छोड़ दी कि मैं आसनसोल के लिए यदि काम नहीं कर सकता तो इस कुर्सी पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। आज जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कहता हूं, मैं जानता हूं कि वो लोग राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठना है तो आप नहीं लड़ सकते। तो कम से कम हम लोग को लड़ने दीजिए। जब हम लोग लड़ने जा रहे तो फिर भी आप लोग चिल्लाते हैं यार क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है तो ये खराब क्यों है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया जो यहाँ के रिहेबिलिटेशन के लिए या जो भी काम है जो सैंक्शन किया था, केवल एक हाई मास लाइट लगा है। आप लोगों के सामने में है, जब भी बारिश होती है जल जमाव और भोलेनाथ के मंदिर में जल का प्रवेश, मंदिर की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, डिप्लेबल कंडीशन है। यहाँ लाइट का पूरा अभाव है, शाम होते ही अंधकार चारों तरफ छा जाता है। तो यहाँ पर हाई मास्क लाइट और ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था, मंदिरों का प्रॉपर मेंटेनेंस और वापस इनों का पुनरुद्धार करने की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर साहब, इन लोगों को प्रतिश्रुति ही मिलेगा या फिर काम भी होगा? हम लोग प्रतिश्रुति देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। आप लोग को जो अभी बाइट दिया जा रहा है या बोला जा रहा है, यहाँ का जो पुरोहित है, यहाँ का जो पुरोहित है, उनका कहना है हम लोग बार-बार प्रतिश्रुति ही हम लोग को मिलता है। जो प्रतिश्रुति देते हैं वो प्रतिश्रुति देने वाले लोग ही हैं, हम लोग प्रतिश्रुति देने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ आने के पहले ही केंद्रीय सरकार को, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को सारी चिट्ठियाँ दी जा चुकी हैं और ये त्वरित कार्रवाई की तरह काम होगा। ये वर्षा काल खत्म होता है, इसके लिए हम लोग चौथ भाव से लड़ेंगे। तिवारी जी भी हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है कॉरपोरेशन का भी। हम लोग मिल के, मेरे सारे कार्यकर्ता, मंडल के अधिकारी, हम लोग सारे लोग मिल के मंदिर की व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों का आश्वासन नहीं है, ये कार्य करके दिखाएंगे, तब आप बोलिएगा कि हाँ काम हो गया। আজ এ পর্যন্ত। সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি। দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।